بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی حقیقی داستان پر محیط اس کہانی سلسلے کی آج 5ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی نے نہ صرف ہندوستانی مخبر کی آنکھوں میں دھول جھونکی بلکہ ہندوستانی سفارت خانے کے کھاگ افسران کو بھی اپنی سمجھداری، ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے موقف پر قائل کیا کہ وہ محض کرکٹ کا شوق لیے ہندوستان جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس تسلی بخش کارکردگی سے نہ صرف پاکستانی خفیہ ایجنسی کے آفیسر کو آگاہ کیا بلکہ ان کی درخواست پر اعلیٰ افسران سے بھی ملاقات کی، جنہوں نے جمال بھائی کو ان کی کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اور آگے کی منصوبہ بندی کے بارے میں آگاہی دی۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ انٹرویو دے کر میں سفارت خانے سے نکلا تو خاصا اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی کارکردگی جتانے کے لیے سامنے واقع چائے کھانے کا رخ کرنے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ ممکن ہے اب بھی میری نگرانی کی جا رہی ہو۔ چنانچہ میں سیدھا بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ وہاں اس وقت کوئی بس موجود نہیں تھی، اس لیے میں امپریس مارکیٹ جانے والی ایک بگی میں سوار ہو گیا۔ میں پہلا مسافر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اونی مفلر لپیٹے ایک اور مسافر میرے ساتھ آ بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی آدھی خالی ہونے کے باوجود بگی چل پڑی۔ اس خلاف معمول بات پر میں چونکا۔ اس پر دوسرے مسافر نے میرا ہاتھ تھپتھپایا۔ فکر نہ کر جمال باؤ، سب خیر ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ دلاور تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر آمیز مسکراہٹ تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ بھی فکر نہ کریں جناب، سمجھے کام بن گیا۔ اس بار چونکنے کی باری اس کی تھی۔ مطلب یہ کہ مجھے یقین ہے وہ لوگ مطمئن ہو گئے، انشاءاللہ ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اسے سفارت خانے کی انتظار گاہ میں ستوت جدی سے اتفاقی ملاقات، اس کی طرف سے مشکوک ہونے، بالفور ممکنہ حد تک قائل کرنے والی کہانی تراشنے اور پھر انٹرویو کا احوال بتایا۔ وہ یک لخت مسرت آمیز جوش سے بھرپور لہجے میں بولا، او یار کمال کر دیتا، بڑے افسروں کا اندازہ غلط کر دیتا کہ ویزا درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی۔ جوان، تو ساڑی سوچ سے بھی زیادہ سیانہ نکلا۔ چل اب زبان سے اپنا کارنامہ بتاؤ بڑے صاحب کو۔ ایمپریس مارکیٹ کے بجائے بگی اس دوران میں کلفٹن کے ایک بنگلے کے سامنے پہنچ کر رک گئی تھی۔ وہاں لگ بھگ 60 برس کے ایک باروب شخص سے میری ملاقات کرائی گئی۔ میں نے انہیں سارا احوال بتایا اور انہوں نے میری کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے شاباش دی۔ انہوں نے رخصت کرتے ہوئے مجھے نصیحت کی، ہندوستان پہنچنے کے بعد بھی دماغ حاضر رکھیے گا صاحبزادے، ہر معاملے اور ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھنا ہماری تربیت کا بنیادی اصول ہے۔ یہاں جو کہانی سنا کر ویزا لیا ہے اسے وہاں پہنچ کر فراموش نہ کر دینا۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی ستوت زیدی پیچھے لگا رکھا ہو۔ میں نے گھر پہنچ کر ابو اور امی جان کو اپنے تسلی بخش انٹرویو کے بارے میں بتایا تو وہ کافی خوش ہوئے۔ دوستوں کی محفل میں بھی دبی دبی اداسی کے ساتھ میری متوقع کامیابی کا جشن منایا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے چٹھی موصول ہوئی جس میں میری ویزا درخواست منظور ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے ویزا لگوانے کے لیے اپنا پاسپورٹ سفارت خانے میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی، جس پر عمل کرنے کے لیے میں اگلے ہی دن پہنچ گیا۔ پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کی امید میں چائے کھانے میں جا بیٹھا۔ مجھے اظہار وہاں دکھائی نہ دیا۔ میں نصف گھنٹے میں 2 پیالی چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کھٹارا سی بس آ گئی جس میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ میں نے ایک سیٹ سنبھال لی۔
गाड़ी धीरे धीरे चलना शुरू हुई थी कि एक साहब मेरे साथ वाली सीट पर आ बैठे। बहुत अच्छे जा रहे हो मियां जमाल। मैंने चौंक कर देखा तो वो इज़हार साहब थे। इस वक्त इनका हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। साथियों में तुम्हारी इस कहानी पर वाह वाह हो रही है जो तुमने फिल्म बदीह तैयार करके भारतीय मुखबिर को सुनाई थी। मैंने दबी आवाज में शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा अब तुम्हारी निगरानी नहीं हो रही, तुम्हें कल से 2-3 घंटे के लिए इस ऑफिस में आना होगा जहां दिलावर तुम्हें ले गया था। मेरी नजरों में पोशीदा सवालात पढ़कर इसने वजाहत की, भाई तुम्हें कुछ पेशेवराना बातें समझाई जाएंगी। अच्छा ये बताओ हिंदी जबान से किस हद तक वाकिफ हो? मैंने कतरे मसरूर लहजे में कहा, अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, माइग्रेशन के वक्त हाई स्कूल में था। वेरी गुड, बस फिर तो मॉरिस कोड में कम्युनिकेशन सिखाएंगे। सुपर फिट जवान हो, फिजिकल फाइट और लाइट वेपन ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पूछा कितने दिन लगेंगे? इंशाल्लाह 3 हफ्तों में रेडी हो जाओगे, इज़हार साहब ने कहा। इस दौरान में बस एम्प्रेस मार्केट पहुंच चुकी थी। इन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुझसे पहले उतरकर हजूम में गुम हो गए। अगले 3 हफ्ते खासे थका देने वाले साबित हुए, लेकिन मैं सब तरह की ट्रेनिंग से लुत्फानंदोज हुआ और तसल्ली बख्श कारकर्दगी दिखाई। बिलाखिर मेरी रवानगी का वक्त आ गया। मेरे घर वालों और दोस्तों ने खुशी और रंजीदगी के मिले जुले जज्बात के साथ मुझे रुखसत किया। मुझे हिदायत के मुताबिक लाहौर से बजरिया वाहगा हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होना था, लिहाजा मुकर्रर रोज से एक दिन पहले मैं लाहौर पहुंच गया। मुझे कतन अंदाजा नहीं था इदारे वाले अब मुझसे राब्ता करेंगे या नहीं, ताहम मैंने जहनी तौर पर खुद को सूरत-हाल से अपने तौर पर निपटने के लिए तैयार कर लिया। मेरे पास अच्छी खासी रकम थी, चनाचे मैंने एहतियातन मुसाफिर खाने के बजाय बादामी बाग के एक मुनासिब से होटल में रात गुजारी और मुकर्रर वक्त पर एक तांगा पकड़कर वाहगा की तरफ रवाना हो गया। मैं वहां पहुंचा तो वहां हिंदुस्तान जाने के ख्वाहिशमंदों का अच्छा खासा हजूम पाकिस्तानी सरहद पर वाक़े कस्टम ऑफिस के सामने जमा था। लगभग 2 घंटे में मेरे कागजात और सामान की चेकिंग मुकम्मल हो गई। इसके बाद हिंदुस्तान जाने की ख्वाहिशमंदों की एक जमात के साथ मैं सरहदी निगहबानों की निगरानी में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद नो मेंस एरिया पैदल पार करके हिंदुस्तानी सरहदी चौकी अटारी की तरफ रवाना हुआ। ज्यादा सामान वाले मुसाफिरों ने मजदूरों की खिदमत भी हासिल की थी, लेकिन मुख्तसर सामान की वजह से मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हिंदुस्तानी सरजमीन पर कदम रखते ही वहां भारी तादाद में सरहदी मुहाफिजों और पुलिस एहलकारों ने हमें घेरे में ले लिया। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी सरहद पार करने वाले मुसाफिरों में शामिल था। मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि एक बावर्दी पुलिस एहलकार आन टपका और दुरुस्त लहजे में टूटी फूटी हिंदी भाषा में एक तरफ चंद कमरों पर मुश्तमिल कस्टम ऑफिस की तरफ जाने का हुक्म दिया। मैंने जल्दी से इस तरफ कदम बढ़ा दिए। वो संतरी मेरे साथ साथ चल रहा था और मुझे मुख्तसर सी कतार में लगाकर ही वापस पलटा। खासे इंतजार के बाद मेरी बारी आई तो यूं समझे कि मेरा पासपोर्ट दूरबीन के नीचे रखकर निहायत बारीक बीनी से जायजा लिया गया। इसके बाद बेतनदही बल्कि बेरहमी से मेरी जामे तलाशी ली गई और मेरे सामान को भी बुरी तरह खंगाल दिया गया। इस दौरान मुझसे रस्मी सवाल जवाब भी किए जाते रहे। हस्बे तवक्का यहाँ भी मेरी हिंदुस्तान आमद की बुनियादी वजह पर खासे शक भरे ताज्जुब का इजहार किया गया। खुदा खुदा करके मेरे पासपोर्ट पर एंट्री की मोहर लगाकर एक अलग थलग गोशे की तरफ जाने का हुक्म दिया, जिसे मुसल्ला एहलकारों की भारी तादाद ने घेरे में ले रखा था। गनीमत यह था कि वहां एक अच्छी खासी कैंटीन मौजूद थी, जहां चाय और खाने पीने का हल्का फुल्का सामान मौजूद था। मैंने चाय और 2-3 समोसे खरीदे। तभी कैंटीन वाले सरदार ने पानी के 2 मटकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुसलियां दा पानी ओ हैगा। इसकी जबान से ये गैर मानूस अल्फाज सुनकर मुझे जहनी झटका लगा और पहली बार हकीकी मानों में एहसास हुआ कि मैं अपना प्यारा वतन छोड़कर एक गैर दोस्ताना बल्कि मुखासमत भरी धरती पर कदम रख चुका हूँ, जहां मुझे किसी से मेहरबानी भरे सलूक की तवक्का नहीं रखनी चाहिए।
हमें लगभग 2 घंटे वहां रुकना पड़ा क्योंकि इस दौरान बाकी मुसाफिरों की निहायत बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। बिलाखिर सब मुसाफिरों को इस बस में सवार होने की इजाजत दे दी गई जो गालबन इसी मकसद के लिए यहाँ आई थी। पुलिस एहलकारों से लदी एक जीप के ताकुब में सुस्त रफ्तारी से चलती हुई पुरानी सी बस खस्ता हाल जीटी रोड पर सरसब्ज खेतों के दरमियान से गुजरते हुए लगभग 1.5 घंटे में अमृतसर पहुंच गई और तमाम मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन के सामने उतार दिया गया, जहां पुलिस एहलकारों का मजीद एक दस्ता पहले से हमारा मुंतजिर था, जिसने बस रुकते ही हमें घेरे में ले लिया, गालबन ये यकीनी बनाने के लिए कि कोई पाकिस्तानी मुसाफिर अमृतसर शहर की तरफ खिसकने ना पाए। खुशकिस्मती से ट्रेन का पहला स्टेशन अमृतसर ही था, जिसकी वजह से नशिस्त हासिल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अमृतसर से दिल्ली तक पूरी रात और 1.5 पहर के सफर में कोई गैर मामूली वाकया रोनुमा नहीं हुआ। मैं चौंकना था, लेकिन मुझे शुबा नहीं हुआ कि मेरी निगरानी हो रही है। इस दौरान सलामत महमूद नामी एक हमसफर बुजुर्ग से मेरी अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई थी। वो साहब लाहौर में मुकीम थे, ताहम इनका आबाई शहर मलिहा आबाद था और वो मारूफ शायर जोश मलिह आबादी को अपना बचपन का दोस्त बताते थे। वो खुद भी अच्छा शायरी ज़ौक़ रखते थे। जब मुझे लगा कि वो मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं तो मैं कदरे मुहतात हो गया। गैर जरूरी तवज्जो से बचने के लिए मैंने हिंदुस्तान आमद का मकसद सिर्फ कारोबारी खरीदो फरोख्त बताया। अपने घर वालों के बारे में भी सरसरी मालूमात देने पर इत्तफाक किया, लेकिन मेरी एक गुरेज पाई ज्यादा कारगर ना हो सकी। इन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने साथ खाना खिलाया और कारोबार के दौरान मौके निकाल कर मलियाबाद आने की दावत दी और मुझे वहां का पता जहन नशीन करा दिया। मैं इतना भी नादान नहीं था कि इनकी दिलचस्पी की मुमकिना वजह न समझ पाता। इनके साथ सफर करने वाले इनके अहले खाना में इनकी 2 जवान साला बेटियां भी थी, जिनमें से एक तो वाकई इतने हसीन नकूश और कदो कामत की मालिक थी कि मेरे जैसे जवान साल शख्स के लिए इनकी सहर अंगेजी से खुद को बचाना आसान ना होता। लेकिन मेरी जिंदगी की ट्रेन गुज़िश्ता 1 माह से ऐसी पटरी पर चढ़ चुकी थी कि चाहने के बावजूद मेरे लिए अपनी पसंद के स्टेशन पर ब्रेक लगाना मुमकिन नहीं था। मैंने सलामत की दिलजोई के लिए मलियाबाद का चक्कर लगाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही नींद के बहाने इनकी मजीद पेशकदमी भी रोक दी। लुधियाना से बिस्तर संभालने के बाद मैं इस वक्त बस से उतरा जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन के मखसूस प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी। मैं अपने छड़ेपन का फायदा उठाते हुए बिला ताखीर प्लेटफॉर्म पर उतरा और एक बार फिर अपने ख्वाहिश की जांच पड़ताल कराने और सामान की तलाशी देने के लिए मुतलका काउंटर पर जा पहुंचा। खुशकिस्मती से वहां ज्यादा वक्त नहीं लगा और एक बार फिर सलामत साहब को अपने मोहब्बत भरे शिकंजे में कसने का मौका दिए बगैर दिल्ली स्टेशन से बाहर निकल आया। दोस्तों, अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह जल्द ही हाजिर होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की इन्फो बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।